چاہتا ہوں کہ اس وقت انہیں آواز دو. آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. شہرتوں، کامیابیوں اور لوگوں کی محبتوں کا ایک ایسا معاملہ جو جب اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو ایک شخصیت کا تعاقب کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ شخصیت ہے جو رشتوں کے احترام سے اپنی زندگی کا سفر شروع کرتی ہے اور لوگوں کو اور نئی نسلوں کو تربیت دینے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھاتی ہے. اور وہ شخصیت اپنی سادگی اور اپنی قلندرانہ صفات کی وجہ سے پوری دنیا کی نظروں کا مرکز بن جاتی ہے. جناب منور رانا اسی شخصیت کا نام ہے. زوردار استقبال کیجئے جناب منور رانا. صدارت کس کی ہے بھائی؟ آپ کی صدارت کس کی ہے؟ معزز حاضرین، جی یہ رام پال یادو صاحب کی سالگرہ ہے یا عثمان بسمانی صاحب کی کتاب کی رسم اجرا، یہ پتہ نہیں چل رہا ہے. اور یہی سب سے بڑی خوبی ہے کسی بھی قومی یکجہتی یا گنگا جمنی سنگم کی جو تہذیب ہے کہ آج کے اس پروگرام میں رام پال یادو صاحب نے اپنے جشن میں اردو کے ایک بڑے شاعر، اردو کے ایک بڑے خانوادے کی کتاب کی رسم اجرا کی تقریب بھی ساتھ میں رکھی. میں انہیں، ان کی پارٹی کو، ان کے تمام دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں. میں شمیم کوثر صدیقی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس احساس تقریب میں انہوں نے مجھے حکم دیا، میں حاضر ہوا. جستہ جستہ میں نے پڑھا. میں نے عثمان صاحب کو، ظاہر سی بات ہے کہ پورا امیر بنائی کی جو اسکول ہے اور 20واں یوں بھی مردم خیز خطہ ہے، اس کے بارے میں کوئی شاعر یہ بتائے کہ آپ بہت اچھا سنتے ہیں، بہت اچھا یہ کرتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا قصبہ ہے جس پر میں نے کہیں لکھا بھی کسی میگزین میں کہ یہ اپنی تاریخ اپنے سینے میں چھپا کر ساتھ ساتھ چلتا ہے. میں کچھ شعر میں سنا رہا ہوں، آپ سنا. ارشاد عالی. ایک مطلع اور ایک شعر ہے یہ. جی اب پڑھنے دیجیے، اب بھائی پڑھنے دیجیے. یہ سب بعد میں لے لیجیے گا، میل آئی ڈی آپ کو مل جائے گی. مطلع اور شعر عطا ہو. خراج عقیدت کے طور پر میں عثمان بسمانی صاحب کی نظر کر رہا ہوں. ارشاد. کہ انسان تھے کبھی مگر اب خاک ہو گئے. انسان تھے کبھی مگر اب خاک ہو گئے. لے اے زمین ہم تیری خوراک ہو گئے. واہ واہ واہ. انسان تھے کبھی مگر اب خاک ہو گئے. لے اے زمین ہم تیری خوراک ہو گئے. واہ واہ واہ. رکھتے ہیں ہم کو چاہنے والے سنبھال کے. رکھتے ہیں ہم کو چاہنے والے سنبھال کے. ہم ننھے روزہ دار کی مسواک ہو گئے. واہ واہ واہ. ہم ننھے روزہ دار کی مسواک ہو گئے. انسان تھے کبھی مگر اب خاک ہو گئے. لے زمین ہم تیری خوراک ہو گئے. کیا کہنا. شعر جہاں سے یاد آ رہے ہیں. ارشاد عالی. جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم. واہ. جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم. اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم. واہ واہ واہ. جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم. اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم. اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا. واہ. اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا. اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے. واہ 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 واہ. اے غریبی دیکھ واہ رستے واہ واہ واہ. اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا. اے امیری دور رہ. اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے. قلندر سنگے مرمر کے. آپ بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ مشاعرے کی تمیز سے واقف نہیں ہیں. بری بات ہے. قلندر
संग मरमर के मकानों में नहीं मिलता। आहा, कलंदर संगे संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों में। वाह 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 वाह, क्या कहना है? वाह, वाह, कलंदर वाह, 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 संगे वाह, वाह, मरमर वाह। के मकानों में। हाँ हाँ हाँ, मैं असली घी हूँ। मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। वाह वाह, तो फिर दुनिया में मेरे चाहने वाले कहाँ होते? आहा, तो फिर दुनिया में मेरे चाहने चाहने वाले कहाँ होते? ये अच्छा शेर है, ये कारखानों में आहा, नहीं। वाह 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 ये वाह अच्छा वाह शेर वाह है, ये कारखानों में नहीं मिलता। वाह, तो फिर दुनिया में मेरे चाहने वाले कहाँ होते? ये अच्छा शेर है, ये कारखानों में नहीं मिलता। और सगी, और आज का ये शेर सालगिरह के तोहफे के तौर पर रामपाल यादव साहब आपकी नजर है जी। सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में। सगी बहनों का रिश्ता है। सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं मिलता। वाह 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 वाह, सगी वाह, वाह, बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं। ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत हिंदुस्तान के सनती और अदबी शहर मुरादाबाद में हुआ जश्न सेहत मुनव्वर राना ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन का शानदार वीडियो। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया सुहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद ने। क्योंकि ये जश्न मुनव्वर राना साहब के लिए था। बीमारी के बाद पहली बार किसी मुशायरे में शिरकत कर रहे मुनव्वर राना साहब ने पहले अपनी बीमारी के बारे में बताया, फिर उसके बाद मुशायरों पे तबसरा किया और फिर अपनी गजल से लोगों को लुत्फ अंदोज किया। उनका ये वीडियो आप देखेंगे, लेकिन पहले जेंगो बनाना की बात 40 सेकंड में। अंताक्षरी और गेम्स का ऐप 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें। लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी। सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का, साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। हकीम साहब, नातेबाग से मुशायरे का आगाज हो गया और हमने अपनी सबसे बड़ी रूहानी और दीनी अदालत से खुद को वाबस्ता कर दिया। यकीन है कि हमारा ये सफर जो अब शुरू होगा गजल के हवाले से, वाकई मुरादाबाद की अदबी तारीख में बहुत कीमती वरक़ जोड़ेगा। मुनव्वर भाई को जब एजाज दिया जा रहा था तो मेरे तमाम पत्रकार साथी और फोटोग्राफर्स ये कह रहे थे कि हमें 1 मिनट मिल जाए, और मैंने उनसे वादा किया कि 1 मिनट नहीं, मैं आपको हैरतों में मुब्तला कर दूंगा। आप हैरतज़दा रह जाएंगे और आप खुश हो जाएंगे कि मैं मुशायरे में गजल का आगाज आज के साहिब जश्न आली जनाब मुनव्वर राना के कलाम से करा। मुनव्वर भाई तशरीफ लाएं और ये उनसे मोहब्बत करने वाले करोड़ों लोगों में से जो हजारों मुरादाबाद में मौजूद हैं, जिनकी मोहब्बतें उन्हें अवार्ड की शक्ल में अभी पेश की गई, उनका शुक्रिया भी अदा करें, उन्हें दुआएं भी दें और इन सब लोगों को कलाम सुनाएं। और कहाँ हैं मेरे प्रेस के दोस्त, तशरीफ लाइए। और आप हैं, मुनव्वर राना साहब हैं। एक ऐलान और बेहद थी, मुशायरे का आगाज मुनव्वर राना साहब की गजल से हो रहा है और ये मुशायरा मुकम्मल भी मुनव्वर राना साहब के कलाम पर होगा। मौजूद हाज़रीन, मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ आलिया ने मुरादाबाद का,
जिगर में रहने वालों का, खास तौर से नजम साहब, यूसुफ मलिक और उनके तमाम अहबाब। यही नहीं कि उन्होंने मुझे आज एजाज से नवाजा, हमारी बीमारी के जमाने में बराबर उन दिनों हमें तो फोन उठाने की इजाजत भी नहीं थी, डॉक्टरों ने बड़ी पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन ये कि वो हमारे बेटे से या हमारी अहलिया से वो लोग तब हमारी खबरें लेते रहे। मैं तमाम लोगों का, ये पहली बार मैं किसी मुशायरे में आया हूं बीमारी के बाद। मैं इस स्टेज या मुरादाबाद की सरजमीन पे खड़े होकर मैं हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के उन तमाम मोहब्बत करने वालों को सलाम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी बीमारी में दुआएं की। और शायद ये मौजूदा कह लें कि ये सिर्फ दुआएं थी। मैंने किसी जमाने में एक शेर भी कहा था कि फिर हवा सिर्फ चरागों का कहा करती है, जब दवा कुछ नहीं करती तो दुआ करती है। तो जब डॉक्टर ने जब अपने हिसाब से ये किया था कि यहां से ये यहां काट पीट करेंगे, लेकिन फिर ये हुआ कि डॉक्टर सुल्तान प्रधान जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया बम्बई में, उन्होंने कहा कि हम यहीं तक पहुंचे थे कि हमारे 50 साल के तजर्बे ने बताया कि इसके आगे सब ठीक है। वाह! मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब हमारे साथ बहुत लोगों की दुआएं हैं, और मैंने उनसे ये कह भी दिया था कि डॉक्टर साहब आप परेशान न हो, अव्वल तो मेरी माँ जिंदा है, एक माँ दुनिया की तमाम मुसीबतों से लड़ने के लिए काफी है। और न कि इत्तेफाक से वो तारीख जो थी वो मदर्स डे की थी, और उस मदर्स डे पे जाहिर सी बात है कि दुनिया की हर माँ जो है वो हमारे लिए उसने दुआएं की, जिसके नतीजे में मैं दिलचस्प बात बताता चलूं। अचानक ये सब हुआ, बिल्कुल मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं गया था, वो एक कहावत है कि गई थी औलाद मांगने, सुहाग भी खो के आ गई। मैं एक दांत उखड़वाने गया था लखनऊ में डॉक्टर शादाब के पास। उन्होंने कहा कि ये हिस्सा आपका मखदूश है, हम इसकी बायोप्सी करेंगे, और वही हुआ कि उसमें रिपोर्ट निकली कि साहब ये पोर्शन जो है इसमें कैंसर है। मैं घर आया, घर आने के बाद मैं अम्मी के पास गया, उनको भी मालूम हो गया था। ऐसे मौकों पर तमाम माएँ चुप हो जाती हैं, मेरी माँ भी चुप थी, कुछ बोल नहीं रही थी। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि आप परेशान न होइए, आप मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ठीक होकर बम्बई से आऊंगा, और अगर खुदा न खास्ता आपने कहीं जल्दीबाजी कर दी और आप चली गई तो हम आपके पीछे पीछे आएंगे और आपके पैर जाना कब्रिस्तान में लेट जाएंगे, इसलिए कि हम आपकी पहलौटी की औलाद हैं। मैं जब बम्बई से इलाज करा के मैं लौटा तो मैं एयरपोर्ट से सीधे मैं माँ के पास गया, अम्मा के पास, और वो बिल्कुल जैसे मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं 6 महीने का हूँ, साल भर का हूँ, 2 साल का हूँ, मुझे कुछ अंदाजा नहीं। वो मेरे गालों को, बालों को सब नोच रही थी यूं करके, और कह रही थी तेरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो ऐसा लगा कि जैसे ये 63 बरस का बूढ़ा फिर से 3 महीने का हो गया है, जैसे उसकी माँ दुलार कर रही। वाह वाह! मैं इस स्टेज पर ये दुआ करता हूँ कि खुदा हर आदमी को अपनी आफियत में रखे। जिनकी माएँ जिंदा हैं उनकी आप खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं और उनका साथ बहुत देर तक रहे। मैं आप तमाम हजरात को मैं कुछ शेर में अर्ज करना चाहता हूँ। एक मतलब ये अर्ज किया है कि अना कहते हैं स्वाभिमान को। दुनिया के मैं ये मतलब करना चाहता हूँ, एक बात ये खासतौर से और भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आजकल के जो हमारे मुशायरे हो गए हैं, इनमें एक खराबी हो गई है कि इसमें कम्युनलिज्म बहुत आ गया, फिर कपरस्ती बहुत आ गई। एक जमाना था ये जब 90-92 के जमाने में कि मुशायरे जो थे वो मदरसी आ गए थे, कवि सम्मेलन त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए थे। हिंदी वालों ने ये किया कि अपने कवि सम्मेलन को साफ किया और इस तरह के अनासिर को अलग कर दिया, उन्होंने अपने कवि सम्मेलन को बचा लिया। हम अभी
जब तक हमारे मुशायरों में 25 से 30% गैर मुस्लिम शरीक नहीं होते हैं, तब तक न हम उर्दू की हिफाजत कर सकते हैं, न इस मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं, न मुसलमान की हिफाजत कर सकते हैं। मैं दसबस्ता शहर जिगर में ये गुजारिश करता हूँ, ये गजल का शहर है, गजल से मोहब्बत करने वालों का शहर है, कि जो गजल का व्यापार है उसको कायम रहने दिया जाए। आज कम से कम आज की इस रात की ये शुरुआत की जाए कि ऐसी शायरी हम सुनाएं कि जिससे हमारे और आपके दिल आपस में जुड़े। इस किस्म की शायरी से मेरा ख्याल है कि कोई मकसद नहीं हल होता है। मैं कुछ शेर में कर रहा हूँ जहां जहां से मुझे याद आ रहे हैं। अना एक शब्द है जिसके मानी है स्वाभिमान की। दुनिया के दिखाने को अना ओढ़े हुए है, दुनिया के दिखाने को अना ओढ़े हुए है, जो शख्स दुशाला भी मेरा ओढ़े हुए है। दुनिया के दिखाने को अना ओढ़े हुए है, जो शख्स दुशाला भी मेरा ओढ़े हुए है। और शेर ये है कि अब आगे जो अल्लाह की मर्जी है वो होगा, अब आगे जो अल्लाह की मर्जी है वो होगा। दूसरा मित्र मुझे याद ही नहीं इसका। अब आगे जो अल्लाह की मर्जी है वो होगा। अब तक तो मेरा जिस्म दवा पड़े हुए है। मुझे याद आ गया, मैं यहाँ के और याद आ रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, काम आएगी कभी यही ठोकर लगी हुई, काम आएगी कभी यही ठोकर लगी हुई, तस्वीर थी मेरी तेरे घर पर लगी हुई। काम आएगी कभी यही ठोकर लगी हुई, क्या कहना, तस्वीर थी मेरी तेरे घर पर लगी हुई। शेर ये आप तमाम हजरात की नजर है, खास तौर से यूसुफ मियां और नजमिया के लिए है कि काम आएगी कभी यही ठोकर लगी हुई। मैं जिंदगी की जंग भला कैसे हारता, मैं जिंदगी की जंग भला कैसे हारता, पूंजी थी खानदान की मुझ पर लगी हुई। मैं जिंदगी की जंग भला कैसे हारता, पूंजी थी खानदान की मुझ पर लगी हुई, पूंजी थी खानदान की मुझ पर लगी हुई। मौजें खिला रही थी मुझे अपनी गोद में, क्या कहना, मौजें खिला रही थी मुझे अपनी गोद में, मिट्टी छुड़ा रहा था समंदर लगी हुई, मिट्टी छुड़ा रहा था समंदर लगी हुई, मिट्टी छुड़ा रहा था समंदर लगी हुई। फिर यूं हुआ कि हार गया जिंदगी से वो, फिर यूं हुआ कि हार गया जिंदगी से वो, पीछे थी उसके मौत बराबर लगी हुई। फिर यूं हुआ कि हार गया जिंदगी से वो, क्या कहना, पीछे थी उसके मौत बराबर लगी हुई। और शेर ये है कि मेरी गजल में मेरी मड़क बरकरार है, क्या कहना, मेरी गजल में मेरी मड़क बरकरार है, हर शेर पर है मोहरे मुनव्वर लगी हुई। मेरी गजल में मेरी मड़क बरकरार है, हर शेर में है मोहरे मुनव्वर लगी हुई। एक मतलब ये है कि आप कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, क्या कहना, आप कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। आप कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाए, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाए। ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाए। शेर ये है, सुनिएगा अजीज साहब, दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, या
تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں، کیا تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں، کیا تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں، یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں، یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں، تم ٹھہر جانا جو رستے میں مزاریں آ جائیں، تم ٹھہر جانا جو رستے میں مزاریں آ جائیں، تم ٹھہر جانا جو رستے میں مزاریں آ جائیں، اور شریعت کی زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی مہلت دے دے، زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی مہلت دے دے، ایک کمصرف کا احسان اتاریں آج، ایک کمصرف کا احسان اتاریں آج۔ دو تین شعر میں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابھی جب میں وہاں سے لوٹا بمبئی سے تو میں نے سوچا کہ پتا نہیں کل کیا ہو، تو میں نے روزے رکھے، بہت دن بعد میں نے 20-22 روزے رکھے لگاتار۔ ڈاکٹر نے منع بھی کیا کہ نہیں شوگر ہے، ارے میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، جب شوگر میں آم کھا سکتے ہیں، اور بلکہ ہم نے شعر کہہ دیا کہ انسان کے ہاتھوں کی بنائی نہیں کھاتے، ہم آم کے موسم میں مٹھائی نہیں کھاتے۔ جب سب کام کر سکتے ہیں، انسان کے ہاتھوں کی بنائی نہیں کھاتے، ہم آم کے موسم میں مٹھائی نہیں کھاتے، تو ہم نے جب سب کر سکتے ہیں تو روزے رکھنا چاہیے۔ بہت دن بعد میں نے اتنے روزے لائن سے رکھے، اسی حالت میں ممبئی گیا ابھی، لیکن پھر دوسرے دن انہوں نے کہا کہ آج اس کی سونوگرافی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو پھر ہم نے ہمت ٹوٹی تو میں نے چھوڑ دی۔ بہت دنوں بعد جب میں نے روزے رکھے تو میں نے ایک مسئلہ کہا، بالکل عجیب، میں جیسے زندگی میں جیسے پھر سے میں لوٹا تھا، لیکن اسے مسئلہ میں اہل علم میں پڑھ رہا ہوں، تو میں نے مسئلہ یہ کہا ان رمضان کے دنوں میں کہ پرانے درد کی شاخوں پہ پھول آتے ہیں، پرانے درد کی شاخوں پہ پھول آتے ہیں، ہٹو ہٹو میرے گھر میں رسول آتے ہیں، پرانے درد کی شاخوں پہ پھول آتے ہیں، ہٹو ہٹو میرے گھر میں رسول آتے ہے، امتحان میں شامل اگر یہ جھولا بھی ہے، امتحان میں شامل اگر یہ جھولا بھی، تو ہم بھی پھانسی کے تختے پہ جھول آتے ہیں، امتحان میں شامل اگر یہ جھولا بھی، تو ہم بھی پھانسی کے تختے پہ جھول آتے ہیں۔ شعر یہ غزل کا کیا ہے، پہلے ہی بیٹھے شعر دیکھیں کہ اب اعتبار کے قابل نہیں رہی آنکھیں، اب اعتبار کے قابل نہیں رہی آنکھیں، کوئی بھی پوچھے تو سب کچھ قبول آتے ہیں، اب اعتبار کے قابل نہیں رہے آنکھوں، کوئی بھی پوچھے تو سب کچھ قبول آتے ہیں۔ اس غزل کا شعر آخر یہ ہے کہ غزل میں نادرہ کاری کا شوق ہے، ورنہ غزل میں نادرہ کاری کا شوق ہے، ورنہ بہت سے کام ہمیں بھی فضول آتے ہیں، غزل میں نادرہ کاری کا شوق ہے، ورنہ یہ غزل کے صرف 3-4 شعر اور میں زحمت دینا سمجھتا ہوں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ غزل ہر عہد میں ہم سے سلیقہ پوچھنے آئی، غزل ہر عہد میں ہم سے سلیقہ پوچھنے آئی، بریلی میں کہاں ملتا ہے سرما پوچھنے آئی، غزل ہر عہد میں ہم سے سلیقہ پوچھنے آئی، بریلی میں کہاں ملتا ہے سرما پوچھنے آئی۔ اور شعر یہ ہے کہ ملا ہے یہ صلہ شاید ہمیں کانٹوں پہ چلنے کا، ملا ہے یہ صلہ شاید ہمیں کانٹوں پہ چلنے کا، کہ ہر خوشبو ہمیں سے اپنا شجرا پوچھنے آئی، بہت اچھا ملا ہے یہ صلہ شاید ہمیں کانٹوں پہ ملا ہے یہ صلہ شاید ہمیں کانٹوں پہ چلنے کا، کہ ہر خوشبو ہمیں سے اپنا شجرا پوچھنے آئی۔ شعر یہ ہے، وہیں خطر آپ سنیے گا، شعر یہ ہے کہ میرے لہجے کی صفاکی کے چرچے عام ہیں اتنے،
चर्चे आम हैं इतने, कई दिन तक तो एक तलवार मुस्खा पूछने आई। अरे वाह, मेरे लहजे की बाकी के चर्चे आम हैं इतने, कई दिन तक तो एक तलवार नुस्खा पूछने आई। और वैसे ये शेर आखिर आपकी नजर है कि मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा, मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा, मैं जब चलने लगा तो सारी दुनिया पूछने आई। मैं जब चलने लगा तो वाह 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 वाह, तालियों की गूंज में माइक से रुखसत कीजिए आज के साहिब जश्न जनाब मुनव्वर राना को। ये सच है कि आप मुनव्वर राना साहब से उनका कलाम सुन रहे थे, लेकिन ये भी सच है कि मुनव्वर राना नहीं, आज की नई और अछूती गजल आपसे बातें कर रही थी। और दोस्तों, बहुत कीमती बात हमारे भाई मुनव्वर राना साहब ने मुशायरों के ताल्लुक से कही। मुशायरे का मकसद होना चाहिए जैसा आज के मुशायरे का मकसद है। ये नजम साहब ने, यूसुफ मलिक साहब और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके ये मुशायरा इसलिए सजाया कि हम अपने अहद के महबूब फनकार की इज्जत अफजाई तो करें ही, हम एकता और मोहब्बत और आपसी भाईचारे की भी ऐसी तहरीर लिखें कि हमारा मुशायरा वक्त के पेशानी पे लिखते कि तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, ऐ वतन हम तुझे रुसवा नहीं होने देंगे। तो ये मोहब्बतों का मुशायरा, भाईचारे का मुशायरा। आप देख रहे हैं मुरादाबाद का मुशायरा। ये है मुरादाबाद की तारीखी जामा मस्जिद। जी हां, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का तारीखी शहर मुरादाबाद, जिसे 1624 में बसाया गया था। जी हां, शाहजहां के दौरे हुकूमत में शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम से मुरादाबाद शहर बसाया गया। उस वक्त के गवर्नर रुस्तम खान ने मुरादाबाद में एक मंदिर बनवाया और एक जामा मस्जिद, जो ये आप देख रहे हैं। जी हाँ, इस जामा मस्जिद की एक खासियत है जो हिंदुस्तान की और जामा मस्जिद से इसे जुदा करती है। जरूर देखें वो खास बात, और वीडियो के आखिर में वो खास बात हम पेश करने जा रहे हैं। जरूर देखें वीडियो के आखिर में। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, और इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब। शहंशाह गजल जिगर मुरादाबादी के शहर मुरादाबाद में हुए इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के एजाज में जश्न सेहत मुनव्वर राना के उन्वान से मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी ने जनाब मुनव्वर राना साहब को उनकी उर्दू खिदमात के लिए 1 लाख रुपए नकद देकर एजाज से नवाजा। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी ने। सोहेल हसन खां मुरादाबाद के मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत थे। जी हां, जनाब सोहेल हसन खां साहब समाजवादी पार्टी मुरादाबाद के पूर्व महानगर अध्यक्ष जनाब शुएब हसन खां पाशा के वालिदे मोहतरम थे। सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद के अध्यक्ष हैं जनाब रईस खां साहब, उपाध्यक्ष हैं जनाब शहजाद कमर साहब, सचिव हैं जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब, कोषाध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, सचिव हैं जनाब सलीम अहमद वारसी साहब, सह सचिव हैं जनाब मोहम्मद खालिद साहब और सह सचिव हैं जनाब मोहम्मद नदीम साहब। इन सभी हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना नुमाया किरदार अदा किया। मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, मुशायरे के कन्वीनर जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब, उन सभी हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में उनका सपोर्ट किया। मैं हूं आपका दोस्त शफीक खान और ये है मुरादाबाद की तारीखी जामा मस्जिद। जी हां, हम आप तक लेके आते हैं मुशायरे, लेकिन इस वक्त जामा मस्जिद के हवाले से, मुरादाबाद की जामा मस्जिद के हवाले से आपको एक जानकारी दे दूं। पूरे हिंदुस्तान में यूं तो कई जामा मस्जिदों में आप गए होंगे, मस्जिदों में आप गए होंगे, लेकिन इस तारीखी जामा मस्जिद की खास बात यह है कि ये इकलौती जामा मस्जिद है जो किसी नदी किनारे वाक़ है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये नदी जिसे कहते हैं हम राम गंगा नदी।
बहरहाल कल रात आपने देखा जिगर मंच से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द आप ये पूरा मुशायरा हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो फिर आप इस वेबसाइट पर विजिट करें और YouTube चैनल पर पहुंच जाएं और वहां आप जीमेल से हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे मुशायरे के वीडियो मिलें तो अब हम व्हाट्सएप पे भी आ चुके हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। हफ्ते में 2 वीडियो आप तक पहुंचा दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो हमारी टीम जो कवर करती है उसके देखे जाते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन उमेर के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, शहर जिगर मुरादाबाद से।